Achieving your goals and targets requires special determination and efforts from you, isn't it? Say, for example, if you're going to appear in June 21 exam, CS executive exam, and today is 31st August, what are you going to do about that? You prepare schedules, you prepare timetables, you prepare strategies, बहुत मेहनत करते हो आप, उसके बाद जाके that final day comes and you are through the exam, you crack it. Okay, so in this process what you have done, you have done a kind of or a sort of budget, right? Budget is nothing but deciding or planning for a future course of action to achieve your goals or targets. आपका गोल क्या था? 21 एग्जाम जो हो रहा है उसको क्रैक करना, और उसके लिए आपने प्लानिंग किया, आपने स्ट्रैटेजी डेवलप किया. This is nothing but a budget. Likewise, if you are an entity and you are having idle funds with you, right? What are you going to do about that? आप वो idle funds को invest करोगे to maximize your wealth, right? So ये जो investing है, like we discussed it earlier too, ये investment के लिए आपको 3 चैप्टर असिस्ट करता है: रेशियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग. ये जो 3 चैप्टर है, फर्स्ट 2 हैव ऑलरेडी बीन डन, थर्ड पार्ट जो है वो कैपिटल बजटिंग है, और फ्रॉम टुडेज क्लास ऑनवर्ड्स वी आर गोना डील विद द कैपिटल बजटिंग चैप्टर. Before going forward with the chapter, I'd like to sincerely draw your attention to certain points. Like while making that intro of the chapter capital budgeting, I mentioned a certain point. ठीक है, इसमें सबसे important क्या था? Maximization of wealth. How you can maximize your wealth? Obviously, sir, by making an investment which will or which is capable of generating a rate of return which will always be higher than the rate of cost at which you generated your initial investment or initial capital or initial fund. तो ये जो कंसेप्ट लाइन है ना, कि जब हम वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है, हम जो इनकम जनरेट करेंगे वो हमारा कॉस्ट से ज़्यादा रहेगा, तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाके वो मेरा जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज कराएगा. एंड दिस एंटायर कंसेप्ट लाइन, यही अपना जो चैप्टर है कैपिटल बजटिंग का, उसका मेन कंसेप्ट है. You will be provided with a number of alternative investment proposals with the cost of capital beforehand with you. आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव है जो आपके बिजनेस के लिए, आपके एंटिटी के लिए फ्रूटफुल है, फेवरेबल है, जिससे आप अपना वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो. तो यही जो चैप्टर है, यही जो कंसेप्ट है, इसी के साथ हम लोग अपना कैपिटल बजटिंग का चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. सो बिफोर जस्ट मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक ऑल माय सब्सक्राइबर्स, and if you're new to my channel watching this video for the first time, all you need to do is hit the subscribe button and bell icon to receive further notifications and updates like this. Let's dive into the class. So finally starting the chapter, capital budgeting is our chapter, FSM is our subject, financial and strategic management, and we are preparing for CS executive new syllabus. जैसे हमने earlier videos में, earlier classes में जो corporate management accounting and FSM के जितने chapters upload हुए हैं, सारे videos, जैसे हमने in depth analysis किया है, जैसे हमने discussions किए to boost our conceptual clarity, in the same way I'm going to try this particular chapter and represent this entire concept of capital budgeting in front of you to help you guys to have a clear understanding of the capital budgeting techniques. क्योंकि for the very reason that I don't know why most of the students do have a kind of fear for this particular chapter. कैपिटल बजटिंग बोल दिया मतलब कुछ अलग सा अजूबा टाइप का ही बात है, ये हमसे नहीं होने वाला है, ये टेक्निक्स हमको समझ में नहीं आता है, वगैरह वगैरह. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आई कैन एश्योर यू समथिंग दैट जितने भी वीडियोस इसके आने वाले हैं, आने वाले क्लासेस में, वो सारे वीडियोस टिल द वेरी एंड अगर आप लोग विद पेशेंस
अगर you follow those videos, those discussions, those notes, then I can assure you that at the end of all the classes आपको कैपिटल बजटिंग का जो डर है वो नहीं रहेगा. फॉर दिस आई विल ट्राई माय बेस्ट. सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कैपिटल बजटिंग चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, फर्स्ट कंसेप्ट नंबर 1, नाम से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं. मीनिंग हम पता करने का कोशिश करें कैपिटल बजटिंग है क्या. 2 वर्ड है, एज द नेम सजेस्ट, कैपिटल एंड बजटिंग. कैपिटल का मतलब सर हमको पता है क्या, ये अमाउंट ऑफ फंड जो हमारे पास है जिसको लेके हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं. रिमाइंड यू अबाउट समथिंग आई सेड अर्लियर कि इस पूरे चैप्टर में हमको हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो दिया रहेगा. हमको मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ करना है, रिटर्न्स देखना है, और प्रोजेक्ट को या एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को हमको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है. सो क्या क्या टेक्निक्स यूज करेंगे ये सब के लिए, वही दैट इज ऑल अबाउट द कैपिटल बजटिंग चैप्टर. ओके, सो अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल, ठीक है, किस लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट. ओके, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन कैपिटल बजटिंग चैप्टर के लिए हम लोग ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म पर्पस को ही रिकॉग्नाइज करेंगे. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है या एसेट्स, मतलब जो नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है, वो खरीदें नहीं खरीदें, कितना खरीदें, कितने में खरीदें, कौन से टाइप का खरीदें. आपके पास जो है एसेट वही थोड़ा सा रिनोवेशन करके आगे कंटिन्यू करें और उसी टाइप का सेम फंक्शनैलिटी के साथ जो दूसरा एसेट मार्केट में अवेलेबल है उसको खरीद लें. ये सारे जो अल्टरनेटिव डिसीजंस हैं रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट, वही हमको कैपिटल बजटिंग में करना है. सो करंट पर्पस के लिए, करंट एसेट्स या करंट वाले इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैपिटल बजटिंग नहीं है. वी विल फोकस ओनली एंड ओनली फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. ठीक है, ये हमारा कैपिटल का बात कर रहा है. कैपिटल मतलब फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट. एंड बजटिंग इज व्हाट, बजटिंग इज ए ब्लूप्रिंट. ठीक है, और प्लानिंग. अब ये जो प्लानिंग करते हो आप इन एडवांस करते हो ना, प्लानिंग कब करेंगे, बजटिंग कब करते हैं, बिफोर एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंस, राइट. आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्लानिंग करके क्या करोगे, जब इन्वेस्टमेंट किए नहीं हो उससे पहले ही प्लानिंग होना चाहिए, राइट. तो ये जो इसीलिए बोलते हैं ना, बजट इज ए प्लानिंग फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक, तो रेफर्स टू ए ब्लूप्रिंट और प्लानिंग ऑन हाउ द कैपिटल इज टू बी इन्वेस्टेड टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न. अब ये मैक्सिमम रिटर्न आएगा तभी आपका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा. ये हो गया बजट का. ओके, तो कैपिटल बजटिंग में हम क्या करने वाले, इट इज जस्ट अ टेक्निक followed by the management to which actually ensures about the plan of action which you need to take to maximize your capital in hand, right. आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स बताएगा या कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो कैपिटल है, आपका जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा. वही डिसाइड करता है कैपिटल बजटिंग. ओके, आगे चलते हैं. अब कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू, ठीक है, द लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन कहाँ कहाँ, पहला परचेज ऑफ टैंजिबल एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट. यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट बोला था वो टैंजिबल एंड इंटेंजिबल कुछ भी हो सकता है. ओके सर. एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन. आप एक प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ काम करते हो, आप अगर वो लेवल ऑफ एक्टिविटी को बढ़ाते हो, एक्सपेंशन करते हो, तो यू आर गोइंग टू इनकर सर्टेन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फॉर दैट. बट आपको तब डिसाइड करना है कि अगर मैं एक सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हाउ मच आई एम गोइंग टू हैव इन अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और इनकम जनरेशन. तो अगर जितना कॉस्ट में इनकर करने वाला हूँ वो कॉस्ट से ज़्यादा का रिटर्न मुझे प्रॉफिट या इनकम के थ्रू ना मिले तो मैं वो एक्सपेंशन करूँगा ही नहीं. ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट. अभी जो बोला पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी का फिक्स्ड एसेट आपके पास है, आप उसको रिप्लेस करोगे कि नया खरीदोगे, कि पुराने एसेट को रिनोवेट करके और चलाओगे.
तो ये सारे जो डिसीशंस हैं ये कहीं ना कहीं कैपिटल बजटिंग से ही रिलेटेड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ओके, ठीक है। तो ये जनरली दीज आर द काइंड ऑफ एरियाज जहाँ पे हम कैपिटल बजटिंग को यूज करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 है। थोड़ा सा ब्रीफ है कि इंट्रो दिया कैपिटल बजटिंग का, धीरे धीरे आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस हो जाएगा। पहला क्या बोला, क्या क्या फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये नाम सुनते ही आप जो लोग ये वीडियोस देखते हैं, मेरे वीडियोस, वो लोग को एक चीज़ क्लिक हो रहा होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ये एक सेपरेट चैप्टर है जिसमें 3 वीडियोस लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसमें भी हमने यही कोशिश किया है कि टीवीएम को हम बहुत अच्छे से समझ पाएं। क्यों? क्योंकि एफएम में जितने चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे टीवीएम पे ही बेस्ड हैं। Until unless you have that clarity of TVM in your mind, you can't just move on to different chapters of financial management. तो आपको TVM जानना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो हम यहाँ पे इस चैप्टर के लिए स्किप कर रहे हैं। जो लोगों ने TVM के क्लासेस नहीं देखे हुए हैं, प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल, TVM सिलेक्ट करें, वहाँ पे 3 क्लासेस 3 वीडियोज हमने लॉन्च किए थे। Please go through that and continue with this particular class, क्योंकि without TVM capital budgeting is nothing, आपको समझ में आएगा ही नहीं। ओके, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, ये सबसे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो कैश फ्लोज, अब ये कैश फ्लोज के बारे में क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही इंडिकेट किया कि कैपिटल बजटिंग में हमको मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कैसे आएगा, इनकम कैसे कैसे जनरेट होता है, वो हमको डिसाइड करके देगा कि पर्टिकुलर कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, राइट। तो वो इनकम जनरेशन कैसे देखेंगे कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव में कितना इनकम जनरेट होता है, वो कैसे देखेंगे? कैश फ्लो से। इसलिए कोई भी कैपिटल बजटिंग का सम आप देख लो, वहां पे कैश फ्लो डिसाइड ना करके यू कैन जस्ट मूव अहेड। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। ये सारे अलग अलग कंसेप्ट के साथ आएंगे। जैसे देखिए कंसेप्ट नंबर 2 है, कंसेप्ट नंबर 3 में ही प्रोजेक्ट कैश फ्लोज हैं, जिसको लेके पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, डिस्काउंट रेट्स। अब एफएम के ऑलमोस्ट हमने सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, तो डिस्काउंट रेट आप सब लोगों को पता है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में ये चीज़ को लेके हमने, डिस्काउंट रेट को लेके हमने डिस्कस किया है। सो इसको भी हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। एंड डेप्रिसिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन का बहुत यूजफुल इम्पैक्ट है इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए अगर ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये अगर आपको पूरा क्लियर है, कैपिटल बजटिंग विल जस्ट बी ए फन फॉर यू। ओके, आगे मूव करते हैं कंसेप्ट नंबर 3। Okay, sir. Slowly we'll progress. Don't worry about the time factor. We'll try to manage our time and wrap up the entire chapter within short time. Okay. Concept number 3, project cash flows. अब ये जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज रेफर टू इट। डिसीजन अंडर कैपिटल बजटिंग हम कैसे लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? एन इन्वेस्टमेंट is selected only if we can generate a return from it at a higher rate than the cost incurred. ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट लाइन ऑफ द एंटायर चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग। विल मूव अहेड। दैट्स व्हाई द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, जब एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव या प्रोजेक्ट इन हैंड से हमारा जो इनकम या जनरेशन ऑफ इनकम है वो अगर कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए दैट्स व्हाई द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट। तो पहले यही कैलकुलेट नहीं होगा तो कैपिटल बजटिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। ओके, अब सेम कंसेप्ट में ही चल रहे हैं हम लोग, कंसेप्ट नंबर 3 में ही हैं, हम आगे चल रहे हैं। व्हाट इज प्रोजेक्ट कैश फ्लो? ठीक है, इनकम जनरेटेड फ्रॉम ए प्रोजेक्ट, और जो प्रॉफिट या इनकम जनरेट करते हो एक प्रोजेक्ट से, वही आपका प्रोजेक्ट कैश फ्लो से। ओके, अब क्योंकि कैश फ्लो का बारे में बोल रहा है,
हम लोग नॉन कैश आइटम को इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉन कैश को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लास है हमारा, जो 4 क्लासेस हमने लॉन्च किया था अकाउंट्स वाला सेक्शन में उसमें जो लोगों फॉलो किए हैं या जो लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट पता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस यू वेरी वेल नो। ओके, तो कैपिटल बजटिंग के पर्पस के लिए जब कैश फ्लोज निकालेंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर करते हैं, लाइक डेप्रिशिएशन एंड ऑल। ओके, only and only cash profit to be considered after tax, क्योंकि टैक्स भी हमारा एक आउटफ्लो है, हमको वी नीड टू पे टैक्सेस। तो जब कैपिटल बजटिंग में एक प्रोजेक्ट का कैश फ्लो देखते हैं, प्रॉफिट जो जनरेट करते हो कैश प्रॉफिट आफ्टर पेइंग द रिक्वायर्ड टैक्स, वही हमारा प्रोजेक्ट कैश फ्लो होता है, जिसको लेके हम कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सर ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा छोटा देखिए, धीरे धीरे स्टेजेस को इंक्लूड कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ, वो भी पॉसिबल है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि कैपिटल बजटिंग बहुत वास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लीज़ हैव पेशेंस, और जो जो मैं करा रहा हूँ साथ साथ में एग्जाम्पल्स को फॉलो करते जाएं। छोटा सा एग्जाम्पल है, आगे चलते हैं। सेल्स दिया है 100, नो डाउट सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80, इग्नोर दिस। ओके, 80 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो अगर आप मियर लैंग्वेज में पूछो GP कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 20 है। ओके सर, ठीक है। तो 100 हो गया, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 20, डेप्रिशिएशन दिया है 10। अब ये डेप्रिशिएशन आती है, आपके माइंड में एक अलार्म बजना चाहिए, नॉन कैश है, ठीक है। वी आर कैलकुलेटिंग इन एग्जाम्पल नंबर 1, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लो। ओके, तो अगर 100 में से 80 और 10 गया तो 90 बचा, दिस इज प्रॉफिट एंड इट इज नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, ठीक है। अगर टैक्स 50% का है तो 5 रुपए का टैक्स आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आया विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये आ गया 5 रुपए। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कैश फ्लो है? द आंसर इज नो। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कैश फ्लो है? द आंसर इज स्टिल नो। ओके, आगे चलते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो नॉन कैश इफेक्ट्स हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसलिए फॉर कैपिटल बजटिंग पर्पजेस आप जब प्रोजेक्ट कैश फ्लोज निकालते हो, आपको नेट प्रॉफिट तक आ गए, तो आपने क्या किया था, ये जो डेप्रिशिएशन है, ये डेप्रिशिएशन आपने यहाँ से, सॉरी, ये वाला जो डेप्रिशिएशन है ये यहाँ से माइनस किया हुआ था, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ डेप्रिशिएशन को फिर से ऐड कर दो, ठीक है। तो जो आएगा वो हो जाएगा प्रोजेक्ट कैश फ्लो। ये जो है आपका, ये प्रोजेक्ट कैश फ्लो है विच इज ओनली एंड ओनली कैश प्रॉफिट, इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट नहीं है। सर इज दिस द ओनली वे टू सॉल्व? नो, एक अल्टरनेटिव वे भी है। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 20, आप डेप्रिसिएशन को एक बार लेस कर रहे हो, बाद में जाके ऐड कर रहे हो, सर इससे क्या फर्क क्या पड़ता है, इससे क्या प्रॉब्लम क्या होता है? हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, कोई मतलब डाउट नहीं है इसमें, लेकिन इसके वजह से टैक्स सेव होता है कंपनी का।